Hello friends, today we start with partnership accounts. Well, when we talk of partnership accounts, it's a big topic in itself and it will consist of some 5 subtopics. What are those 5 subtopics? The first one, basics of partnership accounts. The second one is admission of a partner. The third one is retirement of a partner. The fourth one is death of a partner. And the fifth one is the dissolution of the partnership firm. Basics of partnership, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, and dissolution of the partnership firm. There's also one small topic known as change in profit sharing ratio, which is merged with these topics. So, as I said, partnership accounts happens to be a big topic consisting of various subtopics, and it's a super scoring chapter in the examination, plus consists of a lot of marks. So let's start with the first subtopic in this big chapter of partnership accounts. And what is that? As I just said, basics of partnership. So we start with basics of partnership. Well, partnership firm in India is covered under a law known as Partnership Act, right? So partnership is governed by a law known as Partnership Act. So first, let's discuss in 5-7 minutes the legal points related to partnership firms. Well, we are dealing with only those legal points which are applicable while accounting. Partnership Act अपने आप में तो बहुत बड़ा है, but हम सिर्फ वही points discuss करेंगे जो accounts में काम आएंगे. And we'll keep on discussing those points as and when a new topic arrives. But as of now, let's start with some fundamental points about the basics of partnership. So, when we talk of the basics of partnership, what exactly is a partnership? So, as the first point on your board says that partnership is an association of 2 or more persons. Why 2 or more persons? Because if it's a single person, it is known as a sole proprietor, which we have covered in earlier classes. सिंगल पर्सन अगर बिजनेस करे तो उसे प्रोपराइटर कंसर्न कहते हैं. When we talk of partnership, the minimum requirement is there are 2 persons who should come together. So partnership is an association of 2 or more people, and what do? They pool their resources in a combined kitty. 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने resources एक combined kitty में डालते हैं, उसे कहते हैं partnership firm. Partnership firm. So what is a partnership? It's an association of 2 or more persons coming together. They pool their resources for a common purpose, and that common purpose is known as partnership firm, right? Acha, when I talk of pooling the resources, what kind of resources people can pool in? So this is the first point. Well, you'll get sufficient time to write this down. So just listen to the lecture and enjoy. So partnership is an association of 2 or more persons who are pooling the required resources in a common fund known as partnership firm, right? Now, what are those resources? What are those resources? ये 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक साथ resources लाते हैं एक common purpose के लिए, तो उसे partnership या partnership firm कहते हैं. पर ये resources है कौन से? तो this resources can be tangible monetary assets like cash. It can be current asset like stock. It can also be fixed assets like building. Let me give you one example. Suppose Mr. A, Mr. B and Mr. C, they come together to form a partnership firm, so they will also bring their resources. तो Mr. A cash ला सकता है, Mr. B stock ला सकता है, Mr. C plant, machine, building ला सकता है. So they can pool in tangible resources. Well, तीनों चाहे तो कैश भी ला सकते हैं, कोई कैश लाएगा, कोई स्टॉक लाएगा, कोई प्लांट एंड मशीन लाएगा. मतलब हर बंदा जो पार्टनर बन रहा है उसे कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे. सो दोज रिसोर्सेस कैन बी मॉनेटरी, एंड मॉनेटरी कैन ऑल्सो बी आइदर कैश, इट कैन बी करंट एसेट्स लाइक स्टॉक, इट कैन बी फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीन एंड बिल्डिंग. Alternatively, such resource can be intangible assets. Intangible assets मतलब कैसे? Patents, goodwill, skill, knowledge.
ये रिसोर्सेस भी लाए जा सकते हैं. Well, we all know that we are under a lockdown position right now, correct? And world over, various pharmaceutical companies are concentrating only on one work, that is to find out a treatment for the ongoing virus, correct? Yes or no? Now let's assume there is one individual in Nagpur known as Mr. Sham. Now Mr. Sham, he is into science, he is into pharmaceutical, he is into biology, and he comes up with some patent, with some formula which can treat this virus, right? So he has come up with a formula. That formula eventually will be known as patent. Now he has come up with this formula. उसने अपने घर में कुछ तो भी रिसर्च किया. Well, sounds funny, but just to give you example, उसने अपने घर में कुछ रिसर्च किया और उसको एक ऐसा फॉर्मूला या पेटेंट मिल गया जिससे इस वायरस को खत्म किया जा सकता है. So now this person comes up with a patent or a formula, but he will associate himself with another person, say Mr. Ram, who is very rich person. So now राम और श्याम की पार्टनरशिप हो गई, जहां राम ने कैश लाया, राम ने एक बिल्डिंग खड़ी की जिसे हम फैक्ट्री का नाम देंगे, श्याम ने अपना पेटेंट लाया और दोनों ने पार्टनरशिप चालू की. सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पीपल कमिंग टुगेदर, दे पूल देयर रिसोर्सेस. दोस रिसोर्सेस कैन बी टेंजिबल, कैन बी इनटेंजिबल, कैन बी कैश, कैन बी करंट एसेट, कैन बी फिक्स्ड एसेट, कैन बी टेंजिबल एसेट, कैन बी इनटेंजिबल एसेट. ये चीजें ये लोग पूल करके एक कॉमन फंड में लाएंगे जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म. और ये जो रिसोर्सेस पार्टनर्स लाते हैं, ये रिसोर्सेस को कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल. द रिसोर्सेस व्हाट दे इंट्रोड्यूस इन अ कॉमन फंड known as partnership firm, this resources what they introduce in partnership firm are known as the partners capital. That is the point number 3 on your screen. मैं फिर कह रहा हूं, you will get time to write down, just listen. Now this chapter in our syllabus we are seeing from the perspective of partnership firm. ये चैप्टर हम फर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. मतलब यहां पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बनाने वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म की बनाने वाले हैं, बिजनेस की बुक्स बनाने वाले हैं. यहां हम पार्टनर की बुक्स नहीं बना रहे. ये चैप्टर हम पार्टनर के एंगल से नहीं देख रहे. ये चैप्टर हम पार्टनरशिप फर्म के एंगल से देख रहे हैं. तो दिस चैप्टर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, partnership should be done for the purpose of doing business with a clear cut prerequisite intention to earn profits. एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता. अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो नेसेसरीली वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करनी पड़ेगी. वेल, आगे जाके आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट द ओरिजिनल इंटेंशन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप शुड बी प्रॉफिट ओरिएंटेशन. प्रॉफिट मोटिव शुड बी द इंटेंशन. इसलिए पॉइंट नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप शुड बी डन फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट शुड बी द प्रीरिक्विजिट. राइट नाउ, जब दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन पर्पस के लिए आते हैं तो वो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि मैं 10 लाख रुपए लाऊंगा, तू ये लाएगा, तू ये करेगा, आप वो करोगे, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा. तो ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके बीच में डिसाइड होती है, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को कहा जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट. Whatever these partners agree to is known as partnership agreement. Necessarily the terms and conditions. Now I would like to ask you one question कि ये जो partnership agreement है, जो partners के बीच में तय हुआ है, ये written होना चाहिए या oral भी हो सकता है? Can it be verbal also? Well, the first thing that strike is नहीं sir, verbal नहीं चल सकता. It has to be written. Well, law says something else. Partnership Act, the law that governs partnership firm, says that a partnership agreement, the terms and conditions, agreement, please don't consider कि agreement मतलब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं, whatever two people agree to is known as agreement. तो ये agreement oral भी हो सकता है, ये agreement written भी हो सकता है. It can be oral, it can be written, and mind it, whether it's oral or it's written, both are absolutely valid and both are absolutely legal.
तो पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, दैट कैन बी ओरल, दैट कैन बी रिटन, बोथ ऑफ देम आर वैलिड, बोथ ऑफ देम आर लीगल। बट आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि सर कल चल के कुछ झगड़ा हुआ, कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो सबूत क्या है? Therefore, it is always recommended that हमारे बीच में एज पार्टनर्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई है उसे हम कहीं लिख लें। ये कभी भी रिकमेंडेड है। और अगर उसे हमने कहीं लिख लिया तो जिस डॉक्यूमेंट में हमने उसे लिखा है, जिस डॉक्यूमेंट में पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, उस रिटन डीड को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। मैं फिर बता दूं, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो। इवन अ ओरल पार्टनरशिप इज वैलिड एंड लीगल, but it is always favorable, it is always recommendable to have it written so that future disputes can be avoided. So अगर कल चल के 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए अगर ये आ जाता है कि कैन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कैन द टर्म्स एंड कंडीशंस बी ओरल? यस. कैन इट बी रिटन? यस. व्हाट इज रिकमेंडेड? Written. And if terms and conditions are written somewhere, it is known as partnership deed. That is point number 8 for you. As I just said, partnership in India is governed by a law. And what is that law known as? Check point number 9. It's known as Indian Partnership Act 1932. 1932 because that was the year in which it was formed. You can say it's governed by Indian Partnership Act. Act मतलब इंडिया में एक लॉ को एक्ट कहा जाता है। तो इंडिया में जितनी पार्टनरशिप फर्म्स है उसको गवर्न करने के लिए एक लॉ है, उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Well, what is partnership? 2 or more persons coming together, correct? तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2. मिनिमम 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने लोग चाहिए? नाउ ये पॉइंट को ढंग से सुनिएगा। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई अपर लिमिट लिखी हुई नहीं है। यू कैन हैव 40 पार्टनर्स, 50 पार्टनर्स, 70 पार्टनर्स, 80 पार्टनर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अपर लिमिट लिखी हुई नहीं है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, मैक्सिमम लिमिट कैन बी अनलिमिटेड। But there is another law in India known as Companies Act. Companies Act. आगे चल के जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स चैप्टर करेंगे तो दैट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 पॉइंट नंबर 10 अगर आप देख रहे हैं तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब partnership, cannot have more than 50 partners. If you have more than 50 partners, it will become illegal. और लॉ में एक पॉइंट है कि a specific clause will always overrule a general provision. तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। लिखा है मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी नहीं लिखा है। तो इट बिकम्स अ जनरल क्लॉज। जनरल क्लॉज कि भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बट स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट इज पार्टनरशिप, इफ इट हैज अबव 50 मेंबर्स दैट इज पार्टनर्स, इट विल बिकम इलीगल। देयरफॉर आज के बाद कोई भी पूछे तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 50. तो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एक बार आप लिख भी सकते हैं इसे। एक फ्रेश पेज पे आइए और हेडिंग दीजिए बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज अवर फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ अ बिग चैप्टर नोन एज पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसके बाद धीरे धीरे हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड फॉलोड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करेंगे। बट फिलहाल कुछ दिन तक हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, right? So give a heading on a fresh page known as basics of partnership and you can start writing this point. Writing these points is compulsory, so you have to write it down, right? You can pause the video and you can write it down, but लिखना बेटा compulsory है। तो एक fresh page पे heading दीजिए basics of partnership और बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बोल के ये जो हमने 10 पॉइंट्स लिखे हैं इससे लिखना चालू करें। सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन राइट डाउन। सो प्लीज राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 and 2।
You can pause the screen and write it down. This is your point number 3, 4 and 5. This is your point number 6, 7 and 8. Eventually ending at point number 10. थोड़ा फास्ट लिखिए. So this was small introduction about the legal part of Partnership Act, which is applicable to accounts. There are more points, but we'll do as and when the topic comes. Now let's start with a very interesting topic in the real world and also applicable to partnership. And that interesting topic, full of logics, full of fun, is goodwill. The concept of goodwill, right? Now what exactly is a goodwill, my dear friend? गुडविल नाम ही क्या है, गुडविल. गुडविल मतलब किसी का अच्छा नाम, किसी का रेप्यूटेशन इज नोन एज गुडविल. व्हेन यू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड, सपोज व्हेन वी टॉक ऑफ शूज एंड यू go for buying a brand known as Nike or Puma, right? You buy that brand because that brand has goodwill, correct? Yes or no? When you go for buying watches, you definitely go for a Rolex or a Tag Heuer. Why? Because those are brands. Brands matlab they have good reputation, known as goodwill, right? So goodwill is a reputation of an organization. It's a reputation of a business, correct? And obviously it's a good reputation. Well, reputation can be good, reputation can be bad. So when we talk of goodwill, goodwill necessarily is a good reputation. So your point number 1 is reputation of a firm. Again, you can write it later, just listen first. Reputation of the firm is known as its goodwill, correct? What is goodwill? Goodwill is an intangible asset. Now let me clarify one very big logic. Don't confuse intangible asset with a fictitious asset. काफी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि fictitious assets are intangible assets. No, दोनों में बहुत फर्क है. When we talk of intangible assets, those are actual assets, but you cannot see them or it cannot be perceived by your senses. It cannot be perceived by your senses. बराबर, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे फील नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी परसीव बाय योर सेंसेस, पर वो एक्चुअल में एसेट है. इट इज इंटेंजिबल, वो एक्चुअल में एसेट है. आप कल चल के उसको बेच सकते हो. आज मुकेश अंबानी अपना गुडविल इन द नेम ऑफ रिलायंस, कैन इट बी सोल्ड? यस. कैन द ब्रांड हल्दीराम बी सोल्ड? यस, क्योंकि ये एक्चुअल में एसेट्स है. जो एक्चुअल में है वही तो बिक सकता है, जो फिक्टिशियस है वो तो बिक ही नहीं सकता. कैन गुडविल बी सोल्ड? इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, वेन एवर आई टॉट यू, द फर्स्ट डेफिनेशन आई टॉट यू वॉज ऑफ रियल अकाउंट. एंड वॉट इज रियल अकाउंट? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एसेट, अ थिंग दैट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड, एंड इट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. तो जो टेंजिबल वस्तु है, लाइक डेस्क, बेंच, फर्नीचर, एयर कंडीशन, ये तो आप बेच ही सकते हो, प्लस आप इनको देख भी सकते हो, इसलिए उसे टेंजिबल एसेट कहते हैं. बट जो एसेट्स को आप देख नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, पर आप इनको बेच सकते हो, ये एक्चुअल एसेट्स है, ये बिके जा सकते हैं, दीज आर नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स, राइट? एंड व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स?
fictitious assets, as the name says, fictitious, काल्पनिक, वो सही में एसेट्स नहीं है. तो सर फिक्टिशियस एसेट ये नाम ही कहां से आया? इट इज बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन अकाउंट्स. जो फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ा था कि देयर कैन बी 3 काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. Revenue expenditure is written off in the trading and P&L account every year. Capital expenditure, because it has a life of more than 1 year, plus there is an asset that is possessed by you, is capitalized and it goes to balance sheet because it is carried forward to the next year since the life is more than 1 year. And the third concept was deferred revenue expenditure, जहां benefit 1 साल से ज्यादा तो चलता है बट उससे कोई एसेट एक्वायर नहीं होता. What was the example given to you? Advertisement. If you remember that MRF टायर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट. आप अगर हैवी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हो तो पैसा तो खर्च हो गया, सामने वाले को पैसा दे भी दिया, आपको ये लग रहा है, माइंडेड, ये आपका एस्टिमेशन है, आपको ये लग रहा है कि वो उसका बेनिफिट 2 से 3 साल तक चलेगा. आपने किसी फिल्म स्टार को नागपुर में बुलाया और उससे प्रमोशन करवाया, तो ये आपको लग रहा है कि नागपुर के लोग उसको 2-3 साल तक याद रखेंगे. तो वो एडवर्टीजमेंट पे सपोज आपने 3 लाख रुपए खर्चा किया है, तो आप उसको हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख राइट ऑफ करते हो. तो जो राइट ऑफ हो गया पीएनएल में वो तो हो गया, जो राइट ऑफ नहीं हुआ उसे आप बैलेंस शीट में ले जाके अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हो. इससे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बराबर. सो गुडविल माय डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट. इट्स अ प्रॉपर एसेट. वो काल्पनिक फिक्टिशियस नहीं है, वो एक्चुअल एसेट है जिसे आप बेच सकते हो. बस उसे आप देख नहीं सकते बट आप उसे बेच सकते हो. तो इट्स अ इनटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. दैट इज पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. नाउ गुडविल कितने टाइप के हो सकते हैं? तो गुडविल कैन बी सेल्फ जनरेटेड or goodwill can be acquired. Check out point number 4 on the screen. Goodwill can be self-generated or goodwill can be acquired. Well, you all know what would be the example. Self-generated goodwill, right? नाम ही क्या है? Self-generated goodwill. लोगों ने सालों साल मेहनत करके हमारा खुद का नाम बनाया है. The best example can be your father and his business. आपके पापा ने सालों से उस बिजनेस में मेहनत करके आज उस बिजनेस का एक नाम बनाया है. आपके पापा ने किसी से वो नाम खरीदा नहीं है, इतने सालों से मेहनत करके वो नाम बनाया है. दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. करेक्ट. इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? आपको आगे लॉजिकल पॉइंट समझाने के लिए. और दूसरा होता है एक्वायर्ड गुडविल. एक्वायर्ड गुडविल मतलब हमने किसी का गुडविल खरीद लिया. सर ये कौन सी बात हुई, हम किसी का गुडविल खरीद ले, क्या हम खुद मेहनत नहीं कर सकते? वेल फ्रेंड्स, वी आर हियर ओनली फॉर 50, 60, 70 ईयर्स ऑन दिस अर्थ. करेक्ट. हम एक सेगमेंट में अपना नाम बना सकते हैं, 2 सेगमेंट में अपना नाम बना सकते हैं, हम 10 सेगमेंट में अपना नाम नहीं बना सकते क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है. तो मान के चलिए मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कुछ नाम टीचिंग में बना लिया, ऐसा हम मान सकते हैं. बराबर. अब मुझे एक दिन ऐसा लगा कि यार ये मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स नाइकी के जूते खरीदते हैं, प्यूमा के जूते खरीदते हैं, इससे अच्छा क्यों ना मैं ही जूते मैन्युफैक्चर करना चालू करूं. और कल से मैंने एक नया ब्रांड डाल दिया जूतों का, से ABC ब्रांड. राइट. अच्छा, अच्छी क्वालिटी के मैं जूते बना रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट अगर उसका नाम एक ABC ब्रांड है, वुड यू बाय इट? नो. सम ऑफ यू माइट बाय इट, बट पीपल एट लार्ज, इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, वो जूते की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लोगों को टेस्ट करने में, वर्ड ऑफ माउथ फैलने में बहुत समय लगता है. चलो 4-5 साल मेहनत करके मैंने जूतों में भी अपना नाम बना लिया. अब मुझे इच्छा हुई कि मुझे गारमेंट सेक्टर में जाना है और मुझे गारमेंट्स में अपने नाम बनाना है. तो यू रियली थिंक आई विल अगेन डू अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड क्रिएट माई ओन ब्रांड? फॉरगेट अबाउट वेरी बिग इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक गुच्ची और वर्साचे.
Even if I have to compete with some mediocre brands like Louis Philippe और Van Heusen और Allen Solly, मुझे कितने साल लगेंगे मेहनत करके वो शर्ट्स और ट्राउजर्स बनाने के लिए। मतलब इतने साल मेहनत करके मैंने टीचिंग में नाम बनाया, अब कुछ साल मेहनत करके मैं जूतों में नाम बनाऊं, फिर कुछ साल मेहनत करके मैं कपड़ों में नाम बनाऊं, चलो वो भी बन गया। अब मुझे इच्छा हुई कि मुझे ऑयल रिफाइनरी डालनी है, अब मैं ऑयल रिफाइनरी में मेहनत करके नाम बनाऊं। अरे पर कोई लिमिट तो है। 5-10 साल इधर गए, 10 साल उधर गए, 15 साल उधर गए, 20 साल उधर गए, उसके बाद भी मैं 4 या 5 इंडस्ट्री ही कवर कर पाया ना। तो ऐसे समय पे जब बिजनेस एक्सपैंड करना हो और हमें नए नए सेगमेंट्स में जाना हो, तो रादर देन पुटिंग योर ओन एफर्ट्स एंड बिल्डिंग अ ब्रांड, इट्स ऑलवेज बेटर कि जो एग्जिस्टिंग किसी का ब्रांड बना हुआ है, ब्रांड इज गुडविल, जो एग्जिस्टिंग किसी का ब्रांड बना हुआ है उसे पैसे देके हम खरीद ले। तो बेटा गुडविल 2 टाइप के हो सकते हैं पॉइंट नंबर 4 के अनुसार। गुडविल कैन बी सेल्फ जेनरेटेड, जो हम खुद मेहनत करके सालों साल अपना नाम बनाते हैं, एंड गुडविल कैन बी एक्वायर्ड ऑल्सो। ये पॉइंट इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, दूसरा बेटा इसका लॉजिक एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि अकाउंट्स हमें रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। हम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, समझ में आता है, पर पहले लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप 10 लोगों को सामने जवाब दे सको कि इसका लॉजिक क्या है। यू शुड नॉट फील अशेम्ड दैट यू डू नॉट नो द लॉजिक। So logic plays very important role in accounts, and therefore comes the next point, that is accounting of goodwill is governed by AS, Accounting Standard 26. Well, what is accounting standard? Accounts के कुछ major topics पे जहां डिस्प्यूट हो सकता है या जहां स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, वहां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम सीए इंस्टीट्यूट कहते हैं, सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और उन लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बना के हमें दिए। इसकी डिटेल जानकारी आगे जब आप आगे कुछ प्रोफेशनल कोर्स और परस्यू करोगे या आगे के लेवल्स पे जाओगे तब आपको डिटेल में समझेगा। बट फिलहाल व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाम ही क्या है, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप इसे बेसिक इंग्लिश में कह सकते हैं गाइडलाइंस, बेसिक इंग्लिश में आप कह सकते हैं गाइडलाइंस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे हर देश का जो अपना इंस्टीट्यूट होता है अकाउंटेंट्स का, वो लोग ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जैसे यूएसए में उसे गैप कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंडिया में उसे एएस कहा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती है उसे आईएफआरएस कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली सबका एक ही मतलब है, अकाउंटिंग करने का एक स्टैंडर्ड, एक गाइडलाइन जो सभी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे गुडविल जो टॉपिक है, इट इज गवर्न्ड बाय AS26। AS26 की हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट। AS26 की हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट, एंड गुडविल जो कंसेप्ट है इज गवर्न्ड बाय AS26। वेल, आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल चालू करते हैं ना, बस 5 मिनट में हम करेंगे। बट ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगला पॉइंट अगर कोई आपसे पूछे या आप अपने दोस्तों से पूछे तो ये क्लियर हो जाता है कि किसके कंसेप्ट कितने क्लियर है। लाइक पॉइंट नंबर 6, गुडविल बेटा 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ जेनरेटेड एंड एक्वायर्ड। अगर गुडविल सेल्फ जेनरेटेड है, आई रिपीट, अगर गुडविल सेल्फ जेनरेटेड है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ सकता। इट कैनॉट कम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ सकता तो इवेंचुअली फाइनल अकाउंट्स में और बैलेंस शीट में भी वो नहीं आएगा। अगर वो सेल्फ जेनरेटेड है, हमने हमारी मेहनत से बनाया हुआ है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ सकता। और अगर हमने किसी का गुडविल खरीदा है तो वो डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ सकता है। अब इसका क्या लॉजिक है? वेल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लॉजिक सोचेंगे, देखो सर अगर गुडविल खरीदा है तो प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और आप ही ने सिखाया है कि अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो खरीदा हुआ गुडविल इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो खरीदा हुआ है उसके लिए हमने पैसे दिए, इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसलिए गुडविल रिकॉर्ड होना चाहिए। अब उसी लॉजिक पे कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, पर सेल्फ जेनरेटेड गुडविल जो है वो तो हमने जेनरेट किया है, तो दैट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है
तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। वेल दिस इज एब्सोल्युटली, आई रिपीट, दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग लॉजिक। एक्वायर्ड गुडविल, हमने गुडविल खरीदा है, पैसे लगे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए, वो लॉजिक सही है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हमारे कोई पैसे नहीं लगे हैं इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग लॉजिक। तो व्हाट इज द लॉजिक? लेट मी टेक यू टू AS10। बेटा ढंग से सुनिए, लॉजिक बहुत क्रूशियल है। AS10 जैसे AS26 है, वैसे एक AS10 है, 10 नंबर का AS है, दैट डील्स विथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप उसको टेंजिबल एसेट का नाम दे सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इट डील्स विथ टेंजिबल एसेट्स। बेटा AS10 और AS26 में फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूं। AS10 बोलता है कि जो आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है उसको आप अपनी बुक्स में कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, बराबर। कॉस्ट मतलब जितने में आपने खरीदा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप उस पे भी रख सकते हैं, उसे हम बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, उस पे भी आप रख सकते हैं। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने टेंजिबल एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे भी रख सकते हैं बाय रीवैल्यूइंग द टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल, मैंने नागपुर में एक जमीन खरीदी 10 लाख रुपए की, तो मैंने एंट्री क्या पास की, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर 10 लाख रुपए। तो लैंड मेरी बुक्स में आ गया, कितने पे आ गया, 10 लाख पे आ गया। वेल वी मान के चलते इट्स अ फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड मेरी ओनरशिप की लैंड है। कैन इट बी डेप्रिशिएटेड? नो, इट कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड। पहले हमने पढ़ा था लैंड क्यों डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइफ। ऐसा नहीं है कि लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, लैंड की वैल्यू बिल्कुल कम हो सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, बट लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होता, बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड लाइफ। लेट्स गो बैक टू द कंसेप्ट। मैंने लैंड खरीदा 10 लाख का, तो मैंने एंट्री पास कर दी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 10 लाख। तो मेरी बुक्स में लैंड आ गई 10 लाख पे, और वो नॉन डेप्रिशिएबल है, तो वो हर साल कैरी फॉरवर्ड कितने पे होनी चाहिए, 10 लाख पे होनी चाहिए। यस और नो? यस। तो AS10 मुझे क्या बोलता है कि आई शुड अकाउंट फॉर दिस लैंड आइदर एट द कॉस्ट दैट इज 10 लाख, या 3-4 साल में मान के चलो लैंड की वैल्यू बढ़ के, मार्केट में उस लैंड की वैल्यू बढ़ के 18 लाख रुपए हो गई। तो मैं अपनी बुक्स में, अभी तक मैंने लैंड को बेचा नहीं है, पर मैं अपनी बुक्स में ये लैंड की वैल्यू बढ़ा सकता हूं और उसको 18 लाख पे ला सकता हूं। रीवैल्यूएशन इज अलाउड, रीवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज अलाउड, और मैं उसको मार्केट वैल्यू पे ला सकता हूं। ऐसा कौन बोलता है? AS10 बोलता है, जो टेंजिबल एसेट्स में डील करता है। बट गुडविल इज अ intangible asset and it is dealt by AS26, और AS26 क्या बोलता है, that intangible asset को मुझे कॉस्ट पे रखना पड़ेगा, मैं उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं ला सकता, मार्केट वैल्यू पे नहीं ला सकता। तो इंटेंजिबल एसेट अगर मैंने खरीदा है तो वो मेरे कॉस्ट पे है, मैं उसे रिकॉर्ड कर सकता हूं। पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैंने खुद ने जनरेट किया है, तो मैं उसका कॉस्ट असर्टेन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोल सकते उसका कॉस्ट 0 है, इट इज नॉन असर्टेनेबल। मैं उसका कॉस्ट असर्टेन कर नहीं सकता। गुडविल की मार्केट वैल्यू में निकाल सकता हूं, वीपीए की मार्केट वैल्यू, गुडविल की मार्केट वैल्यू आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट मान के चलिए वीपीए की मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल कम्स टू एक्स अमाउंट, पर मैं वीपीए का गुडविल, क्योंकि वो मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैं उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं ला सकता। मान के चलिए वीपीए का मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2 करोड़। कॉस्ट तो मुझे पता नहीं है, मैं असर्टेन भी नहीं कर सकता क्योंकि मेहनत करके बनाया है। बट मार्केट में वैल्यू अगर गुडविल की 2 करोड़ रुपए है, तो बेटा मैं अपनी बुक्स में उसको 2 करोड़ पे भी नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? उसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डज नॉट अलाउ इट। तो सर हम AS फॉलो करेंगे क्या? इट इज कंपल्सरी टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स because its guidelines issued by the apex accounting body of the country, so it is compulsory to follow accounting standard. जब इतना माइन्यूट डिटेल में आप सुनेंगे और समझेंगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे आपने कर लिए तो वो समझता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपको रट जाता है कि इसके बाद ये एंट्री आने वाली है। नो, गो ऑलवेज फॉर लॉजिक्स, राइट? सो जैसा ये, अब आप इसको लिख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ गुडविल।
You can pause the video and you can write that down. First point, it is a reputation of the firm that is known as goodwill. Obviously, the good reputation of the firm. Second, it's a intangible asset. It's not a fictitious asset. It is a intangible asset. Point number 4, गुडविल सेल्फ जनरेटेड भी हो सकता है, दैट इज हमने हमारी मेहनत से क्रिएट किया है, या वो एक्वायर्ड भी हो सकता है. अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो हम उसे बुक्स में नहीं ले सकते. अगर गुडविल खरीदा हुआ है तो हम उसे बुक्स में ले सकते हैं. लॉजिक, खरीदा हुआ है तो हमें उसे कॉस्ट ऑफ परचेज पता है, इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एट कॉस्ट विच इज अलाउड बाय AS 26. पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं ला सकते. क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उसका कॉस्ट असर्टेनेबल नहीं है और मार्केट वैल्यू पे इनटेंजिबल एसेट को रखना AS 26 अलाउ नहीं करता. राइट? सो अकाउंटिंग फॉर गुडविल इज गवर्न्ड बाय AS 26. दैट इज योर पॉइंट नंबर 5. AS 26 की हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट, उसमें गुडविल कवर होता है. पॉइंट नंबर 6 जो अभी आपको समझाया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट कम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स and it is therefore not shown in the balance sheet. And the last point, books में कौन सा आ सकता है? Only the acquired goodwill can come in books of accounts because it is only the thing that can be recorded in books of accounts. तो पहले हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखा, उसके बाद हम ये एक नया टॉपिक चालू किया विच इज फुल ऑफ फन, नोन एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. बट पहले गुडविल का भी बेसिक जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए ये पॉइंट्स कवर किए. नाउ लेट्स टॉक ऑफ हाउ टू वैल्यू द गुडविल. हाउ टू वैल्यू द गुडविल. पहला प्रश्न ये आता है कि सर गुडविल को हम वैल्यू ही क्यों करें? तो फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम्स नेसेसरी इफ वन पर्सन वांट्स टू बाय समबडीज गुडविल और वन पर्सन हैज टू सेल हिज गुडविल. अरे यार, मुझे अगर मेरा गुडविल बेचना है या आपको मेरा गुडविल खरीदना है तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना. सर अभी आपने बोला कि मार्केट वैल्यू बुक्स में नहीं आती. बेटा बुक्स में नहीं आती, रिकॉर्ड नहीं हो सकती. अरे पर खरीदने बेचने के लिए मार्केट वैल्यू निकालना तो पड़ेगा. सो व्हाई डू वी रिक्वायर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? व्हेन वी वांट टू सेल आवर गुडविल और समबडी वांट्स टू परचेज गुडविल, वी नीड टू वैल्यू द गुडविल. करेक्ट? नाउ हाउ टू वैल्यू द गुडविल? वेल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट complicated concepts in the real world. I repeat, it's one of the most complicated concepts in the real world to calculate somebody's goodwill. Right? पर ये real world में. तो कल चल के अगर आपको इच्छा हुई कि आपको आदित्य बिरला ग्रुप खरीदना है तो आदित्य बिरला ग्रुप का गुडविल कितना, या कल चल के आपको इंटरनेशनल फर्म माइक्रोसॉफ्ट खरीदने की इच्छा हुई, आपसे भी एक बात सोच के देखिए माय फ्रेंड्स. अगर माइक्रोसॉफ्ट खरीदने की इच्छा हुई, मान के चलिए आपके पास इतना पैसा है, यू आर रिच पीपल, मान के चलिए यू आर रिच पीपल, आपको आदित्य बिरला ग्रुप खरीदना है, आपको नाइकी खरीदना है, आपको हल्दीराम्स खरीदना है, ये ब्रांड्स बेचने के लिए है, दीज ब्रांड्स आर अवेलेबल फॉर सेल. ऐसा मान के चलते हैं कि ये ब्रांड्स बेचने को तैयार है और आपके पास पैसा भी है. द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू इज, प्लीज थोड़ा सा अपने ब्रेन को स्ट्रॉम करिए. स्ट्रॉम योर ब्रेन, लेट्स हैव अ ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन. आप मुझे ये बात बताते हैं, नागपुर का लोकल एग्जांपल लेते हैं. हल्दीराम ब्रांड अगर आपको खरीदना है, करेक्ट, यू वांट टू बाय अ ब्रांड विच इज हल्दीराम्स नागपुर, पैसा भी है आपके पास. प्लीज टेल मी वैल्यू कैसे निकालोगे? तुक्का नहीं चाहिए, गेस वर्क नहीं चाहिए कि सर 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़. नो, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग विच इज अ फ्लूक और अ गेस. आप सिर्फ ये सोचिए कौन कौन से पैरामीटर्स को आप ध्यान रखेंगे. सपोज हल्दीराम सेज दैट माई गुडविल इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर 1000 करोड़. सपोज मान के चलते हैं हल्दीराम के जो ओनर है वो आपके पापा के फ्रेंड है और उन्होंने आपको बोला कि चलो मेरे को अपना ब्रांड बेचना है, मैं बहुत थक गया हूं, बोर हो गया हूं, अब मेरे को रिलैक्स करना है, और हल्दीराम ब्रांड इज अवेलेबल फॉर 1000 करोड़. पॉइंट नंबर 2, आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा है. द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू इज YES yes और NO no.
जब छोटी छोटी चीजें आप खरीदने जाते हो ना बेटा, जैसे आप जूता खरीदने जाते हो, आप घड़ी खरीदते हो, आप पीवीआर में मूवी देखते हो, आप कहीं लंच या डिनर के लिए जाते हो, तो आप क्या करते हो? एक बेसिक थॉट आपके मन में चलता है। क्या चलता है? वेल, मेरे मन में तो चलता है, मैं आपको बताता हूं, राइट? सपोज आई गो टू अ कॉफी शॉप, I go to a coffee shop and one coffee is costing 200 rupees. Suppose I go to barista, one coffee is costing 200 rupees. दिमाग में एक बार तो आता ही है ना, क्या 200 रुपए में ये कॉफी परवड़ती है या नहीं परवड़ती है? क्या पीवीआर में 500 रुपए की मूवी देखना परवड़ता है या नहीं परवड़ता है? क्या रोलेक्स की वॉच 12 लाख में परवड़ती है या नहीं परवड़ती है? देखो, पैसा है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि फेंक के आना है। आप जब भी कोई चीज लाइफ में डिसाइड करते हो, आप एक चीज पक्का सोचते हो कि ये मुझे इस प्राइस में परवड़ रहा है या नहीं परवड़ रहा है, और आपके अंदर से अगर आंसर आता है हाँ मुझे ये परवड़ रहा है, तो यू बाय इट। आपको लगता है नहीं यार ये महंगा है, इस प्राइस में ये महंगा है, मुझे नहीं खरीदना, तो आप नहीं खरीदते हो। नाइकी का जूता 15,000 का आपको महंगा लगता है तो आप नहीं खरीदते हो, पर वही नाइकी का जूता जब सेल में आता है 60% ऑफ में, तब आप उसको खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि वो 15,000 का जूता अब आपको 6,000 रुपए में मिल रहा है 60% ऑफ, तो 6,000 में आपको जूता परवड़ता है तो आप खरीद लेते हो। पर वही जूता 15,000 में आप नहीं खरीदते क्योंकि आपको नहीं परवड़ता। बात इसकी नहीं है कि आपके पास 15,000 है या नहीं है, बात इसकी है कि आपको परवड़ता है कि नहीं परवड़ता है। तो अब आप मुझे बताइए, तो छोटा एग्जाम्पल हो, अब आप मुझे बताइए हल्दीराम का गुडविल 1,000 करोड़ रुपए में अवेलेबल है, वुड यू लाइक टू बाय इट? यस और नो? एंड ये यस या नो इमोशनल नहीं होना चाहिए, दिल की आवाज नहीं सुनना है, दिमाग की आवाज सुनना है। और दिमाग कौन कौन से पैरामीटर्स आपके सामने रखेगा, आप इसको खुद एक पेज और पेंसिल लेके आप आज खुद इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए कि हल्दीराम का गुडविल 1,000 करोड़, यस और नो? अगर और सिंपल एग्जांपल लेना है, वीपीए का गुडविल 2 करोड़, यस और नो? कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे। बात यस या नो की नहीं है, बात यह है कि वो कौन सी चीजें आपके दिमाग में आ रही है जिससे आपको लगता है कि ये महंगा है या ये सस्ता है। तो जैसा मैंने कहा, when we have to value the goodwill in real life में जब गुडविल को वैल्यू करना है, जब एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करना है, एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड को टेक ओवर करना है, आपको नहीं लगता फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को टेक ओवर किया तो दिमाग में कितने कैलकुलेशंस चले होंगे कि ये वैल्यू पे मैं व्हाट्सएप को टेक ओवर करूं या नहीं करूं? तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू रियल वर्ल्ड। बट हमारे लेवल पे एग्जामिनेशन में वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर सकते। देखिए मैंने पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, देयर कैन बी मेनी वेज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग वेरियस assumptions एंड मैथमेटिकल टूल्स, बट ऐसा एग्जामिनेशन लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो एग्जामिनेशन लेवल पे हमारे सिलेबस के लिए उन्होंने बहुत सिंपल करके रखा हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डील विथ ओनली 3 methods to calculate the value of goodwill. The 3 basic methods to calculate the goodwill. Let me remind you, ये जो तीनों मेथड से हम आंसर निकालने वाले हैं, इससे गुडविल की वैल्यू तो आती है, एग्जाम में तो मार्क्स मिल जाते हैं, पर ये मेथड्स रियल लाइफ में सिर्फ बेस बन सकती है कैलकुलेट करने के लिए गुडविल। सिर्फ ये मेथड लगा के 5 मिनट में रियल लाइफ में गुडविल का आंसर नहीं आ सकता। दीज आर द बेस मेथड्स। इसके बाद बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐड होके रियल लाइफ में गुडविल की वैल्यू निकलेगी। बट एग्जाम इट्स प्रिटी कूल, इट्स प्रिटी कूल। देयर आर 3 सिंपल मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. So after this much of study about basics of partnership, some legal points, basics of goodwill, now it's time to start the numerical version, the calculation version, जिसमें आपको बहुत मजा आता है, that is calculation of goodwill और valuation of goodwill. और एग्जाम में रफली ये या तो 4 मार्क के लिए आता है या 6 मार्क के लिए आता है इन द मेन एग्जामिनेशन. तो बिफोर दैट एक फ्रेश पेज पे आइए. आपने इसके पहले बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप तो लिखा हुआ था. यस. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ कंसेप्ट ऑफ गुडविल, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल. ये भी आपने लिख लिया था. 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए.
ये आपके पॉइंट नंबर 1 to 6 है. दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 7. कंसेप्ट ऑफ गुडविल लिखने के बाद तो फर्स्ट टॉपिक था आपका बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पॉइंट्स. सेकेंड टॉपिक वॉज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल एंड नाउ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो ये पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए. प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन. ये लिखना कंपलसरी है, प्लीज डोंट स्किप इट. आपको लगेगा पहला लेक्चर है पार्टनरशिप पे, स्किप करते कल लिखेंगे, कल का परसों, वो बैकलॉग बहुत बढ़ते जाएगा. सो प्लीज राइट इट डाउन नाउ. राइट एंड नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट मेथड. देखिए नीचे 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. रफली हमें आने वाली 2 से 3 लेक्चर्स और क्लासेस लगेंगे ये तीनों मेथड्स को अच्छे से समझने के लिए और इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए. Is that okay? So we start discussing the logic of first method, that is average profit method. Let's start. Now, what is average profit method? What exactly is average profit method? What are the assumptions and the logics? Right? तो चलिए बात को सुनते हैं. मुझे एक बात बताइए, कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि हम अपनी मेहनत से भी अपना गुडविल क्रिएट कर सकते हैं, तो हम किसी का गुडविल खरीदे क्यों? तो आंसर भी मैंने आपको बताया था. एक सेगमेंट में मैं अपना गुडविल बना लूंगा मेहनत करके, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में. पर विश्व में देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. अरे हर इंडस्ट्री में मैं मेहनत करके अपना नाम कैसे बनाऊं? तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं किसी का नाम खरीद लूं. राइट? So why am I buying? Please understand the logic. Why am I buying somebody's goodwill? देखिए एक तरीका क्या है, एक तरीका ये मेथड 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड है. इसमें 4 स्टेप्स है. आप चारों स्टेप लिख लो, इसको रट लो और इस पे 10 क्वेश्चन कर लो और आपको लगेगा कि आपको समझ गया. दूसरा है कि अगले 10 मिनट अच्छे से सुनिए इसका लॉजिक ताकि आप कभी ना भूलें. So the first question that comes to my mind is, why am I valuing goodwill? The answer comes that, sir, I have to buy somebody's goodwill. Okay. Then the next question comes as, why am I supposed to buy somebody's goodwill? सर मुझे किसी का नाम इसलिए खरीदना है क्योंकि मेरा उस इंडस्ट्री में नाम नहीं है. ग्रेट. तो आपको अगर किसी का गुडविल खरीदना है तो खरीदना क्यों है? क्योंकि उसका नाम यूज करके आज आपने उसका गुडविल खरीद लिया. माइंड इट, आज प्रेजेंट डेट में 2020 ईयर में आप उसका गुडविल खरीद रहे हो. क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि उसका गुडविल खरीद के उसका नाम यूज करके आप आने वाले ईयर्स में पैसे कमा सको. यस और नो? क्लियर? आप किसी का गुडविल क्यों खरीद रहे हो? आप हल्दीराम का गुडविल क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि हल्दीराम का गुडविल खरीद के उसका नाम यूज करके आने वाले फ्यूचर ईयर्स में आप पैसे कमा सको. सो वी परचेज गुडविल टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर. यस, we purchase goodwill to earn profits in future. तो मुझे फ्यूचर प्रॉफिट प्रेडिक्ट तो करने पड़ेंगे. तो चलिए केस स्टडी के लिए हम हल्दीराम का ही एग्जांपल लेते हैं. तो मुझे अगर हल्दीराम का गुडविल खरीदना है तो खरीदना इसलिए क्योंकि उसका नाम यूज करके मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं. तो फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा कितना ये तो जानना पड़ेगा. ऐसे ही तो नहीं है उठ के उसको 1000 करोड़ दे दूं मैं. सबसे पहले मुझे यह एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका गुडविल खरीद के अगर मैं फ्यूचर में पैसे कमाने वाला हूं तो मैं फ्यूचर में कितना कमाने वाला हूं. अब फ्यूचर में मैं कितना कमाने वाला हूं यह प्रेडिक्ट कैसे करें? हाउ डू वी प्रेडिक्ट इट? आपको 12th में कितने मार्क्स आने वाले हैं, आपको सीए में कितने मार्क्स आने वाले हैं, आपको आने वाली क्लासेस में कितने मार्क्स आने वाले हैं, या प्रेडिक्ट कैसे करोगे? हाउ डू यू प्रेडिक्ट फ्यूचर? By and large, all of us, we predict future on the basis of the past information what we have. पिछले साल गर्मियों में नागपुर का टेम्परेचर 47 डिग्रीज तक गया था. उसके पिछले साल 46 डिग्रीज गया था. तो ये पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि हां इस साल भी 47 48 जा सकता है. सो माय प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इज डिपेंडेंट अपॉन माय पास्ट डेटा.
यस और नो? तो गुडविल मैं खरीद रहा हूं ताकि मैं सामने वाले का फ्यूचर प्रॉफिट जस्टिफाई कर सकूं, कैलकुलेट कर सकूं, क्योंकि आज खरीद के मैं कमाने वाला हूं। पर फ्यूचर का प्रॉफिट का एस्टिमेशन हो सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। यस और नो? So the first thing I want is, suppose I am buying Haldiram's goodwill, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले चाहिए उसके पास्ट कुछ इयर्स के एक्चुअल प्रॉफिट के फिगर, करेक्ट? सो माय स्टेप नंबर 1, ये बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। माय स्टेप नंबर 1 in my average profit method is calculation of normal profit of past year। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू, राइट? तो पास्ट ईयर के मेरे पास कौन से प्रॉफिट अवेलेबल है? पास्ट ईयर के मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट्स अवेलेबल है। तो चेक दिस, दिस इज माय एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स तो अवेलेबल ही होंगे। सो माय एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स आर अवेलेबल। माय मतलब किसके? हल्दीराम के एक्चुअल प्रॉफिट्स पास्ट ईयर के अवेलेबल है। आपको इसमें करना क्या है? ऐड एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर्स, ऑब्वियसली इफ एनी, जरूरी नहीं है कि हुआ ही हो, बट ऐड एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर माइनस abnormal gains of past years सर लॉसेस को ऐड करना है? लॉसेस को तो माइनस करना रहता है सर, और गेन को माइनस करना है? अरे गेन्स को तो प्लस करना है। नो, लिसन व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। सर जैसे ही आप ये दो चीजें करते हो, यू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ past years. You arrive at normal profit of past years. Let me explain again. Logic सुनिए because it's interesting. रटिए मत, लॉजिक सुनिए। पिछले कुछ साल के हल्दीराम के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, करेक्ट? आपको ईयर वाइज ही कंपाइल करना है। अभी हम इसके बाद तुरंत एक केस स्टडी भी देखने वाले हैं। आपको पास्ट ईयर्स के एक्चुअल प्रॉफिट दिए रहेंगे। मान के चलिए आपको 2014, 2015, 2016, 17, 18 और 19, 2020 तो चालू है, पिछले 6 साल के एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। वो हल्दीराम ने एक्चुअली कमाए, इसमें कोई डाउट नहीं। बट आपको याद करवा दूं, आप गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? आपको यह जानना है कि आप फ्यूचर में कमाने वाले हो। फ्यूचर में कमाने के लिए पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? तो पास्ट ईयर के हल्दीराम के एक्चुअल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब पास्ट ईयर में जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हुए हैं, अगर हमें यह पता रहता है कि पास्ट ईयर में कोई एबनॉर्मल हरकत हुई है, दैट एबनॉर्मल हरकत कैन बी अ लॉस ऑल्सो, कैन बी अ गेन ऑल्सो। एबनॉर्मल लॉस इज समथिंग लाइक लॉस बाय फायर। फैक्ट्री में आग लग गई, 3 करोड़ का नुकसान हो गया। तो सर यहां हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान के चलिए 2018 में हल्दीराम के वहां आग लगी और उनको 3 करोड़ का नुकसान हो गया, यस? और 2018 जिस साल आग लगी उस साल का एक्चुअल प्रॉफिट 100 करोड़ दिया हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, पास्ट में 2018 में हल्दीराम वाले के वहां आग लग चुकी है, आग में 3 करोड़ का माल जल गया है, और वो माल जलने के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद, अकाउंटिंग में एंट्री होने के बाद भी हल्दीराम वाले का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है। मतलब 2018 में हल्दीराम वाले का एक्चुअल प्रॉफिट 100 करोड़ है, यस? और 3 करोड़ की आग लगने के बाद 100 करोड़ का एक्चुअल प्रॉफिट है। अब आप 2 मिनट के लिए मान के चलिए, अगर वो आग नहीं लगती, अगर वो एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, तो प्रॉफिट 100 करोड़ होता? नहीं, 97 हो जाता ना। अरे नहीं सर क्या बोल रहे हो, अगर वो 3 करोड़ की आग नहीं लगती तो प्रॉफिट 103 करोड़ होता। 100 तो कब है? 3 करोड़ के लॉस के बाद। एक्चुअल में बेटा ये सब हो चुका है, 2018 में हो चुका है, एक्चुअल में 3 करोड़ का लॉस हो चुका है, और लॉस होने के बाद हल्दीराम वाले का 2018 का प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़। तो अगर ये 3 करोड़ का लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट होता 103, मतलब हमने 3 करोड़ ऐड कर दिया, इसलिए ऐड एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर। पर सर ऐड ही क्यों करें? आर वी एक्चुअली चेंजिंग द पास्ट? नो,
अरे कैन यू चेंज एनीथिंग इन द पास्ट? 10 मिनट पहले जो हुआ आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप एक्चुअल प्रॉफिट कैसे चेंज करोगे? बेटा आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट चेंज नहीं कर रहे, आप तो पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट से सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ होता, एबनॉर्मल हरकतें नहीं होती, तो पास्ट ईयर में हल्दीराम ने नॉर्मली कितना कमाया होता। सर पर हम नॉर्मल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा तेरे वहां फ्यूचर में आग लगेगी, ये पक्का है क्या? सर हो भी तो सकता है। अरे हाँ हो सकता है, पर फ्यूचर में तेरे वहां भी 3 करोड़ की आग लगेगी, ये पक्का है क्या? नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट नॉर्मल बिहेवियर, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग कि मेरे साथ सब नॉर्मल ही होगा, और अगर कुछ एबनॉर्मल होने भी वाला है तो मुझे उसकी क्वांटम नहीं पता। ये लॉजिक है कि हम पास्ट ईयर के जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं उसमें से एबनॉर्मल आइटम हटा रहे हैं। मैं फिर याद करवा दूं, आप पास्ट ईयर्स को चेंज नहीं कर रहे, आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीथॉट कर रहे हो कि इनकी जो एबनॉर्मल हरकतें थी ये अगर नहीं होती तो नॉर्मली इन्होंने पास्ट ईयर में कितना कमाया होता। एक्चुअल में तो एक्चुअल प्रॉफिट कमाए, पर ये 3 करोड़ की आग नहीं लगती तो उसने 103 कमाया होता। वैसे ही एबनॉर्मल गेन, सपोज महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर है, उनकी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, वो नागपुर में हुई और उन्होंने हल्दीराम को एक स्पेशल ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर से हल्दीराम वाले ने 10 करोड़ कमाए। ये होने वाला है कि हो चुका है? सर हो चुका है। ये कब की बात है? 2019 की बात है। 2019 में एक मिनिस्टर साहब की बेटे या बेटी की शादी नागपुर में थी, तो उन्होंने हल्दीराम वाले को ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर से हल्दीराम वाले ने 10 करोड़ कमाए। अब हर साल शादी होने वाली है क्या? नहीं, इट्स अ एबनॉर्मल गेन। ये भी एक्चुअल में हो चुका है। तो 2019 में मान के चलिए हल्दीराम वाले का एक्चुअल प्रॉफिट 150 करोड़ है। दैट्स एक्चुअल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट। कैन इट बी चेंज? नो। बट बेटा 2019 में वो 150 करोड़ का प्रॉफिट हल्दीराम वाले को कब हुआ? वो मिनिस्टर साहब के बेटे या बेटी की शादी के 10 करोड़ के फायदे के बाद हुआ। मान के चलिए 10 करोड़ का था, तो 150 करोड़ इज अर्न्ड बाय हल्दीराम इंक्लूडिंग दैट 10 करोड़ ऑफ स्पेशल केस। अगर वो स्पेशल केस नहीं होता तो प्रॉफिट कितना होता? 160। अरे नहीं सर, 150 तो 10 करोड़ के बाद है। अगर वो 10 करोड़ नहीं होते तो 140 ही होता। सर 10 करोड़ से कम करो, इसलिए वो देखिए बोर्ड पे माइनस एबनॉर्मल गेन। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? हमको पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, वो पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट्स में हम पास्ट ईयर में अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसे ऐड करेंगे और कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ है तो हम उसे माइनस करेंगे। जरूरी नहीं हर किसी को एबनॉर्मल लॉस या गेन हो, पर अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हम एबनॉर्मलिटी की जो इफेक्ट्स है वो हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉस ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, हटाएंगे तो प्रॉफिट ऐड होगा। गेन ऑलरेडी ऐड हो चुका था पास्ट ईयर्स में, हटाएंगे तो माइनस होगा। दूसरा सोचने का तरीका सिंपल क्या है? अगर ये लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ता, ऐड करो। अगर ये गेन नहीं होता तो प्रॉफिट कम होता, माइनस करो। तो स्टेप नंबर 1 का लॉजिक, कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। एंड हाउ डू आई कैलकुलेट? एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। ये ईयर वाइज लेना पड़ेगा आपको, 2015, 16, 17 सब अलग, कंबाइन नहीं कर सकते। एड abnormal losses if it happens in the past year minus abnormal gains if it happens in the past year to arrive at normal profit. So did we change past year's information? No, past year की information हम change नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं? अगर ये पास्ट में हरकत नहीं होती तो नॉर्मली हल्दीराम वाले ने कितना कमाया होता। आई होप इट्स फाइन। आप इसको लिख सकते हैं मेथड नंबर 1, प्रेफरेबली फर्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे आइए, मेथड 1 की हेडिंग दीजिए और मेथड 1 हेडिंग देने के बाद आप स्टेप 1 और ये स्टेप 1 का पूरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए। खत्म नहीं हुआ है, यहां तो हमने सिर्फ पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट से पास्ट ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट्स लाए। नाउ व्हाट इज माय स्टेप 2? बेटा एक बार ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके पास्ट ईयर के आ गए स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 का फाइनल आंसर क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। ये स्टेप 1 के जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आए हैं इसका आप एवरेज निकालेंगे। तो व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज टू फाइंड आउट द
एवरेज ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर। वाई? क्योंकि पास्ट ईयर में आपको 5 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो 5 साल के एक्चुअल प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आए स्टेप 1 में, और अब वो 5 साल का एवरेज निकालना है। एवरेज 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वेल मेजरली आप सिंपल एवरेज ही निकालेंगे जो आप बचपन से निकाल रहे हैं। जैसे 5 साल का प्रॉफिट है, फिगर है ए बी सी डी ई, तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं? वो 5 साल के कौन से प्रॉफिट लेने हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल से तो आप नॉर्मल पे आ गए थे स्टेप 1 में। अब वो नॉर्मल प्रॉफिट कौन से आए 5 साल के? ए बी सी डी ई। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? पांचों का टोटल कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज योर सिंपल एवरेज, जो 7th 8th में आपने सीखा था। तो व्हाट इज वेटेड एवरेज? दैट्स अनदर कंसेप्ट जो हम 1-2 एग्जांपल लेने के बाद करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि स्टेप 1 में नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आपको सिंपल एवरेज निकालना है। आई थिंक इट्स इजी। वेटेड एवरेज मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। यू राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट कि दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये आप स्टेप 2 लिख सकते हैं, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर। इट कैन बी सिंपल एवरेज, इट कैन बी वेटेड एवरेज। If question specifies to calculate weighted average, then only go for weighted average. कंसेप्ट कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा स्टेप 1 क्या हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर से आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आए। स्टेप 2 क्या हो गया? वो नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 4-5 साल के जो दिए थे उसका आपने एवरेज निकाल दिया। यस यस। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज कैलकुलेशन ऑफ future maintainable profits. This is also known as FMP, future maintainable profit. अब हम कहां पे हैं? ये देखिए, we already have average profit as per step 2. ये average profit कौन सा है बेटा? This average profit is either the simple average or the weighted average, but at least we have average profit as per step 2. तो ये क्या आया? ये पास्ट ईयर के नॉर्मल हरकतें करके हल्दीराम को जो प्रॉफिट होता उसका एवरेज आया, राइट? अब कभी कभार अगर क्वेश्चन 6 मार्क का आ जाए तो वो कुछ फ्यूचर की भी एडजस्टमेंट्स दे देता है। जैसे प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने हल्दीराम का गुडविल खरीदा, यस सर। तो बेटा ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती है, ऐसे काफी खर्चे हो सकते हैं जो आज तक हल्दीराम को नहीं लगे, तो उसके पीएनएल में नहीं आए, पर मैं हल्दीराम खरीदने के बाद मेरे को वो खर्चे लग सकते हैं। और ऐसे काफी सारे खर्चे ये भी हो सकते हैं जो आज तक हल्दीराम को लग रहे थे, पर मैं हल्दीराम खरीद लूं तो मुझे नहीं लगेंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज हल्दीराम वाला, लेट्स टेक अ फनी एग्जांपल, हल्दीराम वाला खुद अपनी एक्सपर्टीज से भुजिया तलता है, करेक्ट? तो उसे किसी भुजिया तलने वाले को नहीं रखना है क्योंकि वो अपनी एक्सपर्टीज से तलता है, तो उसे उसका खर्चा नहीं आता। यस, बट मैं अगर हल्दीराम का गुडविल खरीद लूं तो मैं तो तल नहीं सकता, राइट? मुझे आता ही नहीं है, तो मुझे एक बंदे को रखना पड़ेगा। सपोज उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए साल की, तो आज तक हल्दीराम वाले को 5 लाख का खर्चा नहीं हो रहा था, पर मुझे आने वाले समय में वो 5 लाख का खर्चा होने वाला है। एंड माइंड इट, गुडविल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 में फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। तो पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट को मैंने बेस लिया, उसमें कुछ एबनॉर्मल हरकत है तो उसको एलिमिनेट किया ताकि मैं नॉर्मल हरकतों पे आ सकूं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे नॉर्मल चीजें होगी और अगर एबनॉर्मल हो तो भी वो क्वांटम पे नहीं होगी। तो स्टेप 1 में मैं पास्ट ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आया, फिर मैंने पास्ट ईयर का एवरेज निकाल दिया ताकि एक फिगर पे आ सकूं। अब वो एवरेज प्रॉफिट यहां स्टेप 3 में आपको दिख रहा है, पर ये पास्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट है। अब फ्यूचर में अगर मुझे कोई एडिशनल एक्सपेंस होने वाले हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुझे होने वाले हैं जो आज तक हल्दीराम को नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगा? माइनस फ्यूचर एडिशनल एक्सपेंसेस। फ्यूचर, हाँ, पास्ट को हमने बेस बनाया और हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो माइनस फ्यूचर एडिशनल एक्सपेंस, क्योंकि मुझे फ्यूचर में होने वाले हैं तो इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा। एंड ऐड फ्यूचर एडिशनल इनकम। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हो, पर किसी क्वेश्चन में हो तो आपको उसका लॉजिक याद रखना है कि भाई पास्ट में हल्दीराम को नहीं हो रहा था,
पर फ्यूचर में मेरे को ये हो सकता है, मेरे को अगर एक्स्ट्रा खर्चे लगे तो मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि हल्दीराम को आज तक नहीं लगे, मुझे लगने वाले। और कोई खर्चा हल्दीराम को आज तक लग रहा था और मुझे नहीं लग रहा, लाइक सीए की फीस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हल्दीराम को सीए की फीस लग रही थी, सपोज मुझे नहीं लगने वाली, तो इट्स इनडायरेक्टली माई इनकम इन फ्यूचर, तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो इससे वी अराइव एट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, वी अराइव एट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन 4 मार्क का है तो आई थिंक स्टेप 3 वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 रहेगा। बट अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो ये पक्का एडजस्टमेंट वो देगा, राइट। एंड लास्ट 2 minutes, नाउ वी मूव टू द लास्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। इट्स वेरी सिंपल। Goodwill is equal to FMP as per step 3 whole multiplied by number of years of purchase। गुडविल इज इक्वल टू एफएमपी। एफएमपी कौन सा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो हमने स्टेप 3 में निकाला। सर एक क्वेश्चन है सर अगर ये चीजें नहीं है एग्जाम में तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल है ना बेटा, एवरेज प्रॉफिट तेरा स्टेप 2 में आया, यस हाँ। क्वेश्चन में फ्यूचर एडिशनल एक्सपेंस और इनकम नहीं है तो दोनों जीरो हो जाएगी। सपोज एवरेज प्रॉफिट एज पर स्टेप 2 कौन सा, सिंपल या वेटेड, वो तेरा आंसर आया 25 लाख रुपए। फ्यूचर की कोई एडिशनल एक्सपेंस या इनकम दिए तो प्लस माइनस कर, नहीं दिए तो वही 25 लाख प्लस 0 माइनस 0, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू योर एवरेज प्रॉफिट, बराबर। स्टेप नंबर 4, जो मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, ये पर एनम आ रहा है कि मैं एक साल, क्योंकि मैंने एवरेज प्रॉफिट लिया था बेस में, तो एवरेज प्रॉफिट मतलब पर ईयर, तो मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज ऑल्सो पर ईयर, तो मेरा एफएमपी आ गया एज पर स्टेप नंबर 3। ये मेरा एफएमपी आ गया, कम ऑन यस और नो, मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पर ईयर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट इसको चुपचाप फॉलो कर लेता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, बेटा ये क्वेश्चन में दिया रहता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 7 years परचेज, तो हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे। कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे। सर ये वो पास्ट ईयर के जो फिगर्स है वो है क्या? नहीं 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 नहीं, पास्ट ईयर का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है, और हम भी क्या करते हैं, हम भी एज स्टूडेंट्स उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना लॉजिक जाने, क्योंकि सर हमको तो मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? व्हाट डू यू मीन? सर अगर सच स्टेप 1 का लॉजिक था, स्टेप 1 का लॉजिक क्या था, पास्ट ईयर के एक्चुअल से मुझे पास्ट ईयर के नॉर्मल पे क्यों आना है, क्योंकि हल्दीराम को पास्ट में जो एबनॉर्मल हरकतें हुई वो मेरे को होगी फ्यूचर में, जरूरी नहीं, और उसी क्वांटम में होगी ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेप 1 का लॉजिक था। स्टेप 2 का लॉजिक, एवरेज क्यों निकालना है, पिछले 5 साल के फिगर दिए तो एवरेज निकालना है ताकि हम पर एनम पे आ सके। वेटेड एवरेज का लॉजिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टेप 1 का लॉजिक है, स्टेप 2 का लॉजिक है, स्टेप 3 का लॉजिक क्या है, हम किसी का गुडविल क्यों खरीद रहे हैं, हम किसी का गुडविल इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में कमा सके। तो वी हैव टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लिया था, पर फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा एक्सपेंस होने वाले हैं तो वो भी तो माइनस और प्लस करना पड़ेगा। ये थर्ड स्टेप का लॉजिक था। सी एवरीथिंग इज लॉजिकल माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज लॉजिकल। जब इतने सब लॉजिक है तो स्टेप 4 हम सीधा ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि बेटा क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लिखे होंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में हल्दीराम का नाम खरीद के मैं 1 साल में इतना कमा पाऊंगा, यस। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब यह है कि इतने साल तक, कम से कम इतने साल तक वो गुडविल अगर मैंने खरीदा और मैंने खराब क्वालिटी का भी माल सप्लाई किया। सर आप क्यों करोगे? मैं करूंगा नहीं, ये अजम्पशन है। जैसे हम बोलते हैं ना, काफी बार बोलते हैं बुरे से बुरा क्या होगा, वर्स कम वर्स क्या होगा। हमारे मम्मी पापा भी काफी बार बोलते हैं जब हम डरे हुए रहते हैं, बेटा टेंशन मत ले, ज्यादा से ज्यादा खराब क्या होगा। ये वो बात चल रही है। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं कि मैं हल्दीराम का गुडविल खरीद के मैं खराब क्वालिटी दूंगा या बर्बाद कर दूंगा।
पर सोचना तो नेगेटिव ही पड़ता है कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। तो मैंने हल्दीराम का गुडविल खरीद लिया, फ्यूचर में मैं इतना प्रॉफिट 1 साल में कमाने वाला हूं। अब आप सोचिए, अगर मैंने खराब क्वालिटी का माल दिया, कुछ भी किया, तो वर्स्ट कम वर्स्ट कितने साल तक उस गुडविल के नाम पे मैं कमा पाऊंगा। ऐसे बहुत बार आपने एग्जाम्पल देखा है जब आपके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि यार हमारे जमाने में ना ये होटल की जो क्वालिटी होती थी, ये रेस्टोरेंट की जो क्वालिटी होती थी, ये आज नहीं है। आपने भी काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई नया कैफे खुला है, 2 साल पहले खुला था, आप जब 2 साल पहले जाते थे तो बहुत बढ़िया सर्विस थी, आज सर्विस कम हो गई, तो क्वालिटी डिटोरिएट्स। यस और नो? यस और नो? यस। पर उसका गुडविल बन गया है, और गुडविल बन गया है तो ऐसा बहुत बार होता है कि नाम अच्छा हो जाने के बाद सालों साल वो नाम के बेसिस पे ही कमाई होते रहती है, क्वालिटी कम ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो बात है। मैंने हल्दीराम का गुडविल खरीद लिया, उसके पास्ट के बेसिस पे मैंने फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट कर लिया कि मैं उसका नाम खरीद के फ्यूचर में इतना कमाऊंगा पर ईयर, FMPS पर ईयर, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को बेच लिया था। तो पर ईयर मान के चलिए मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, ये फिगर आ गया, पर ईयर आई अर्न 1 करोड़, एक एग्जाम्पल के लिए। और अगर मैंने खराब से खराब क्वालिटी दी, कस्टमर सर्विस नहीं दी, टाइम पास किया, तो भी इतने साल का जो उसका गुडविल है, वो गुडविल के बेसिस पे कितने साल तक कस्टमर आते रहेंगे। तो सर मान के चलिए 8 साल तक कस्टमर आते रहेंगे। अगर आपने कुछ टाइम पास भी किया, खराब क्वालिटी भी दिया, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 8। आपको लगता है नहीं सर, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलेगा, आपने अगर खराब क्वालिटी दी ना तो 2 साल में नाम खराब हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब कितने साल वो गुडविल चलेगा। अच्छी क्वालिटी दी तो जनरेशंस तक चलेगा, पर खराब क्वालिटी देने के बाद भी, क्यों गुडविल नाम क्यों खरीद रहा हूं, वरना तो मैं ही मिठाई बनाना चालू कर देता। नाम इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि लोग हल्दीराम के नाम से आते हैं। तो अगर मैंने कुछ कम ज्यादा भी किया तो हल्दीराम के नाम से कितने साल तक लोग आते रहेंगे, इस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सो दिस इज अबाउट गुडविल वैल्यूएशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, आपको और एक बात बता दूं, हाँ, 3 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, ये तीनों से अगर आप आंसर निकालोगे ना, एक ही बंदे का गुडविल निकालोगे। सपोज वीपीए का ही गुडविल आप निकाल रहे हो, तो वीपीए का गुडविल मेथड 1 से निकालोगे तो कुछ और आएगा, 2 से निकालोगे तो कुछ और आएगा, 3 से निकालोगे तो कुछ और आएगा। अब सर ये क्या बात हुई, वीपीए का ही गुडविल निकाल रहे तो आंसर सेम आना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि हर मेथड के अपने अलग असम्पशन है, हर मेथड के अपने अलग असम्पशन है। तो तू निकाल रहा है वीपीए का ही गुडविल, पर वीपीए का गुडविल मेथड 1 से विल गिव आंसर x, मेथड 2 विल गिव आंसर y, मेथड 3 विल गिव आंसर z, राइट। तो एग्जाम में तो मेथड स्पेसिफाइड हो गया, आपको वही लगाना है। दैट्स व्हाई आई सेड इन रियल लाइफ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, इट्स नॉट दैट सिंपल इशू। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये जो पहली स्क्रीन थी, शायद से ये आपने लिख ली है, मेथड नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका स्टेप नंबर 1 ये आपने लिख लिया होगा। दिस इज योर स्टेप नंबर 2, माइंड इट, वेटेड एवरेज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं। दिस इज योर स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। बेटा ये सब लिखना है, प्लीज राइट इट डाउन। और ये लास्ट स्टेप, दैट इज calculation of the value of goodwill, right? ओके, क्विकली एक मैं समझ सकता हूं पहला लेक्चर है आज गुडविल पे, पर एक क्विकली मुझे लगता है कि एक केस स्टडी हमें कर लेनी चाहिए। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, हम एक केस स्टडी करके देख लेते हैं। दिस इज द केस स्टडी फॉर यू। एक बार देख लीजिए प्लीज। द एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। एक्चुअल प्रॉफिट पास्ट ईयर के दिए रहते हैं, पिछले 4 साल में एक पार्टनरशिप फर्म ने कितना कितना पैसा कमाया। तो 2016, प्लीज बोर्ड पे देखिए, 2016, 2017, 2018, 2019, 4 साल के एक्चुअल प्रॉफिट्स दिए हुए। 2 लाख, 3,40,000, 5,80,000 और 4,10,000, ये एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको पिछले 4 साल के दिए। और एग्जाम में ऐसे ही कुछ रिमार्क्स दिए रहेंगे, जैसे 2016 और 2019 में कोई रिमार्क ही नहीं है, पर 2017 में देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑफ 1 लाख एंड 2018 में देयर इज अ स्पेशल इनकम लाइक दैट मिनिस्टर्स वेडिंग, सन्स वेडिंग, 1,80,000।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 5 years परचेज, मतलब ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो गया, मतलब इतने साल उसका गुडविल चलेगा, यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको ये लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, यू नीड नॉट राइट दिस, राइट। तो बेटा अपना स्टेप 1 क्या था, थोड़ा फास्ट लिखता हूं, पार्डन द हैंडराइटिंग। तो अपना स्टेप 1 था टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर, करेक्ट। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर में हम एक टेबल बना लेंगे। Correct. Now, let's write down the years 2016, 2017, 18 and 19. So, let's skip this page. Step 1 was calculation of normal profits of past year, बराबर। तो हमें चार साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 16, 17, 18 एंड 19। 2016, 2017, 2018 and 2019, right? Now we'll start with the actual profits. See, it's just for understanding, therefore I am writing short forms. एग्जाम में अलाउड नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स जो थे वो आपको क्वेश्चन में दिए थे, 2 लाख, 340, 2 lakhs, 340, 580 एंड 4,10,000। ये आपको पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट्स दिए। अब आपको क्या करना है, ऐड एबनॉर्मल लॉसेस एंड माइनस एबनॉर्मल गेन्स ऑफ द पास्ट ईयर इफ एनी। तो पहले साल कुछ नहीं है, दूसरे साल में देयर इज अ लॉस ऑफ 1 लाख, तो in second year there is a loss of 1 lakh, and in third year there is a special income of 1.8 lakhs. We all know that income has to be subtracted and losses have to be added so that we can arrive at normal profits of the past year. So we arrive at normal profits of the past year. So this is 2.0, 4.4, 4 and 4.1। ये आपके पिछले 4 साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। डिड वी चेंज लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स? नो, लास्ट ईयर हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये एबनॉर्मल हरकत नहीं होती तो क्या होता। नेक्स्ट स्टेप है इसका एवरेज निकालना है। मैंने अभी कहा कि विल गो फॉर अ सिंपल एवरेज, तो माय स्टेप 2 is simple average। 2 plus 4.4 plus 4 plus 4.1 whole divided by 4, right? तो इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। 2 plus 4.4 6.4, 6.4 plus 4 10.4, 10.4 plus 4 14.4 plus 0.1, this is 14.5 divided by 4, right? Now 14.5 divided by 4, so the answer comes to 3.12, 4 3s are 12,
roughly it comes to 3.625, right? Now ये आपका सिंपल एवरेज आ गया 3.625. So guys, the average is 3.625. तो step 1 we calculated normal profit, step 2 में उसका simple average निकाला. Well, इधर देखिए यहाँ future के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो my step 2 the answer 3.625 will become future maintainable profit, right? तो step 3 future की कोई adjustment नहीं दी है, तो this 3.625 my simple average profit will become future maintainable profit, and directly I will go for my goodwill valuation, which is my average profit 3.625 whole multiplied by number of years of purchase. नीचे देखिए case study में number of years of purchase was 5. So when I multiply this by 5, my answer would be 18.125 lakhs. आपको ये लिखना नहीं है, दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि हमने इतना सब लॉजिक देखा तो आपको एक फील आना चाहिए, इसलिए हमने देखा. ये हमारा केस स्टडी था. केस स्टडी के बाद वी कैलकुलेटेड स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 उसका एवरेज, स्टेप 3 इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि फ्यूचर के एडजस्टमेंट नहीं है. स्टेप 4 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. So my dear friends, this is how we started with the first lecture on partnership. हमने क्या देखा? The basics of partnership, some legal points, बाकी के legal points हम आगे देखेंगे जैसे टॉपिक आएंगे. Then we saw the concept of goodwill. Then we also saw the valuation part, and we understood the first method very logically, the average profit method. Next lecture में हम इस पे questions करेंगे, और उसके बाद in the next succeeding lecture we will see super profit method and capitalization method. तो आज का क्लास was only on explanation of logic and understanding it with the help of one case study. कल के लेक्चर में ना हम इस पे 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. यू कैन ऑलवेज कॉल मी फॉर योर डाउट्स. You can WhatsApp me. You all have my number. This is my number. Anybody of you can call me, WhatsApp me. आपके डाउट्स अगर टेक्स्ट पे आंसर हो सकते हैं तो मैं टेक्स्ट से करूँगा. मुझे लगता है कि ऑडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई रिकॉर्ड ऑडियो एंड गिव यू. और अगर लगता है कि डाउट बहुत ही ग्रेव है तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो. So this is Vipul Vora signing off from the first lecture. Have a great time. Thank you.